हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने थर्ड लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. Transportation system is important. Why? Because it transports various substances from one end of a body to another. The transportation system in humans has been divided into two parts. One is said to be as cardiovascular part and another is said to be as lymphatic system. कार्डियोवैस्कुलर पार्ट को हम लोगों ने डिटेल में देखा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द ट्यूब्स विच आर प्रेजेंट इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दैट इज सेड टू बी एज ब्लड वेसल्स. Three types of blood vessels are there within the body: arteries, veins and capillaries. Arteries carries oxygenated blood, veins carries deoxygenated blood. Capillaries की wall thin होती है and exchanges of oxygen and carbon dioxide takes place actually through the capillaries. Capillaries are connected to each and every part of our body, that is to each and every cell of our body. Thickened wall is of arteries and thin wall is of veins. Why? Because they have to carry, arteries have to carry blood under pressure from heart to the body parts, and vein has to carry blood from the body parts to the other part, to the heart. So at that particular moment, when it takes blood from the body parts, the blood is not under the pressure. इसीलिए उनकी wall क्या बनाई जाती है, तो thin बनाई जाती है. Then the next thing that we have seen is about the connective tissue, that is said to be as blood. Blood is said to be as connective tissue because blood connects each and every part of our body and it delivers various substances from one end of a body to another. The matrix of a blood is said to be as plasma, which is 55% of blood volume, and it contains 90 to 95% of water and 6% of protein within it. Other than that, it has heavy amount of ions in it. Digested food is there into the plasma. The plasma also contains 45% of the corpuscles. These corpuscles are RBCs, WBCs and platelets. RBC क्या करते हैं, तो it transport oxygen from one end of a body to another end, and secondly it also maintains the pH of our blood. WBCs are there for the killing, means they have a killing mechanism, so they will be involved in killing or eliminating the pathogens. And last was the platelets. Platelets is said to be as a clotting factor of our body. It coagulates blood. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड से वजह से क्या होगा, तो जो ब्लड ऊज आउट हो रहा है वूंड में से, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, इट इज व्हाट द ब्लड फ्लो इज स्टॉप्ड एट पर्टिकुलर मोमेंट. Now today we will start with the pumping organ of the transportation system, that is cardiovascular system, said to be as heart. Heart अगर एवरेज ह्यूमन का देखा गया तो इट इज साइज ऑफ अ क्लोज्ड फिस्ट. ये हम लोगों ने बचपन से सीखा है. अलॉन्ग विद दैट अगर उसका लेंथ देखा तो वो होता है नियरली 2 से 12 सेंटीमीटर, और उसका अगर वेट देखा गया है तो इट इज 250 ग्राम इन फीमेल्स एंड nearly 300 grams in males. हार्ट जो होता है वो कहाँ होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन द thoracic cavity and thoracic cavity between two lungs and slightly toward the left lung. ये हम लोगों ने जब डायग्राम देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम का तब हमने देखा था. और यही जो हार्ट होता है वो रेस्ट करता है इनटू अ डोम शेप्ड ऑर्गन, दैट इज सेड टू बी एज डायफ्राम. हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 parts. 4 parts, that out of that 2 parts are said to be as atria and next 2 parts are said to be as ventricles. ऐसे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे ह्यूमंस का. उसमें से एक 2 एट्रिया जो होती है, एक राइट एट्रिया होती है, एक दूसरी लेफ्ट एट्रिया होती है, और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, दूसरा राइट वेंट्रिकल होता है. तो टिपिकल हार्ट जो होता है ह्यूमंस का वो यहाँ मैंने ड्रॉ किया है. आज हम लोग वो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, और कैसे सर्कुलेशन होता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे. सो नाउ हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, ठीक है, एंड दिस 4 चैम्बर्ड हार्ट विल हैव 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 ऑरिकल्स या एट्रिया. हम लोगों के जो चैम्बर्स है हार्ट के वो क्या करते हैं, तो दीज चैम्बर्स डजंट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. Always remember कि oxygenated blood will come from, या oxygenated blood या O2 rich blood will always originate from heart, but
एक्चुअली ये कहाँ से आता है? तो लंग्स से आता है, क्योंकि हमने सीखा है रेस्पिरेशन में कि एक्सचेंजेस जो होते हैं किस पे? तो एल्वियोलाई पे। वो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन एल्वियोलाई से जाता है ब्लड में। तो एक्चुअली लंग्स क्या लेके आती है? तो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती है, जो वो पोर करती है हार्ट में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कहाँ जाता है? तो बॉडी पार्ट्स में जाता है। और ये बॉडी पार्ट से कौन सा ब्लड आएगा? तो बॉडी पार्ट से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सी ब्लड और कहाँ जाएगा? तो हार्ट में जाएगा। और यही ब्लड कहाँ जाता है? तो लंग्स में जाता है। तो इस वे में हमारा हार्ट क्या करता है? तो हार्ट में दो टाइप के ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइमल्टेनियसली प्रेजेंट रहते हैं। Rather it is present at the same time on both the chambers. इसीलिए हम लोगों को ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या नहीं होना चाहिए? मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मिक्सिंग होगा तो प्रॉपर क्या नहीं होगा? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और हम लोगों की जो एनर्जी नीड है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना प्रॉपरली जाएगा हर जगह, उसमें अगर मिक्स्ड ब्लड चला गया तो एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी इतना याद रखना कि वी कैन नॉट टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, इसीलिए वी हैव मेड अ हार्ट इन 4 चैम्बर। कैसे कैसे पार्ट है? तो हियर यू कैन ऑब्जर्व 1, 2, 3 and 4 chamber of our heart. The right side of us is said to be as left side of a heart. So this particular bigger chamber is said to be as left ventricle. The smaller one is said to be as left atria, or it is also said to be as auricle या atrium. ठीक है, ये पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट होता है, ये हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड ही लेके जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन से साइड में होता है? तो राइट साइड, लेफ्ट साइड में होता है हार्ट के। ये ब्लू वाला, इसीलिए मैंने इसको क्या किया है? रेड कलर दिया है। अब ये ब्लू वाला पोर्शन इज व्हाट? राइट साइड ऑफ योर हार्ट। सो दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट एट्रिया। एट्रिया छोटे होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेंट्रिकल। ये जो पार्ट है, ये कौन सा ब्लड लेके जाएगा? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ कौन सा आएगा? डीऑक्सी ब्लड। तो डीऑक्सी ब्लड कौन सा पार्ट में रहता है? तो राइट पार्ट में रहता है। ठीक है, 4 चैम्बर्स है, तो 4 चैम्बर्स के 4 डिफरेंट होते हैं पाइप्स। ठीक है, तो पहला पाइप अगर राइट एट्रिया में देखा, तो राइट एट्रिया जो पाइप रहता है उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन। Pulmonary vein is an exception to all kind of vein because it carries oxygenated blood. Deoxygenated blood is carried by a vein, but pulmonary vein carries oxygenated blood. और ये जो वेन होती है, ये वेन आती है फ्रॉम लंग्स। तो ये कैसे जाती है? तो हमारे राइट साइड ऑफ लंग्स एक पाइप जाएगा, एक लेफ्ट साइड ऑफ लंग जाएगा, और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा कहाँ? तो एट्रिया में लेके आता है। नेक्स्ट पाइप विच इज देयर इन योर लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेड टू बी एज अयोटा। तो यहाँ से शुरुआत होती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल और पीछे से आता है। ठीक है, पीछे से 3, राइट, लेफ्ट एंड अपर, ऐसे वे में वो ब्रेक डाउन होता है। और ये अयोटा कैरी करता है अगेन कहाँ है? तो ऑक्सीजनेटेड पार्ट है, तो ऑक्सीजनेटेड पार्ट ही ब्लड का कैरी करेगा और कहाँ लेके जाएगा? तो टू बॉडी लेके जाता है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड इज टेकन टू द बॉडी पार्ट विद द हेल्प ऑफ अयोटा। नेक्स्ट पाइप होता है हमारे राइट एट्रिया का। राइट एट्रिया का पाइप जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं वेना कावा। ये डीऑक्सी ब्लड लेके आता है, और ये कहाँ से आता है? तो बॉडी पार्ट से आता है। ठीक है, तो बॉडी पार्ट से आने वाला होता है वेना कावा। और इसका राइट वेंट्रिकल का भी पाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जाती है लंग्स की तरफ। पल्मोनरी वेन आती है लंग्स से, पल्मोनरी आर्टरी जाती है टूवर्ड्स लंग्स। और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कौन सा ब्लड लेके जाती है? तो इट टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अगेन इट इज एन एक्सेप्शन टू ऑल काइंड्स ऑफ आर्टरीज।
नेक्स्ट थिंग ये याद रखना कि वेंट्रिकल की जो वॉल रहती है, ये वॉल बहुत ज्यादा थिकन होती है, ठीक है। और वो वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए ये ब्लैक मेम्ब्रेन है, और इस ब्लैक मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेप्टम। सेप्टम वॉल, ये सेप्टम वॉल क्या करती है, राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है लेफ्ट वेंट्रिकल। अगेन क्यों, कि मिक्सिंग ना हो ब्लड का। इसके अलावा वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स इतनी बड़ी, इतनी थिकेंड होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एट्रिया, बिकॉज एवरी टाइम द वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, तो ब्लड को बाहर फेंकते हैं हार्ट के। सो वेन एवर दे हैव टू थ्रो द ब्लड आउटसाइड द हार्ट, दे रिक्वायर हेवी अमाउंट ऑफ प्रेशर टू बी क्रिएटेड for that particular process. So to create that much pressure, what they do is they make their wall muscular. So due to muscularity क्या आएगा, अच्छा खासा प्रेशर जनरेट होगा, so that blood क्या हो जाए, आउट ऑफ द हार्ट मूव हो जाए। इसीलिए वेंट्रिकुलर वॉल क्या होती है, थिकेंड होती है एज कंपेयर टू एट्रिया। एट्रिया का क्या काम होता है, तो एट्रिया ऑलवेज रिसीव ब्लड्स। देखो यहाँ राइट एट्रिया में बॉडी पार्ट थ्रू वेना कावा ब्लड आता है, और यहाँ लेफ्ट एट्रिया में फ्रॉम लंग्स आता है थ्रू परमनरी वेन्स। तो एट्रिया को हमेशा क्या करना है, ब्लड को रिसीव करना है, और यही ब्लड कहाँ जाता है, तो आगे वेंट्रिकल में जाता है। तो राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल जाने के लिए यहाँ एक वाल्व होती है या ओपनिंग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। दैट इज सेड टू बी एज ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो ब्लड को यहाँ से यहाँ पोर करने के लिए ये वाल्व्स होती है। वाल्व्स है तो अगेन वो गेट हो गए जो ओपन हो गए एक ही साइड पे, और यहाँ से यहाँ यानी लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए भी गेट होता है, और उस गेट को हम लोग कहते हैं मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वाल्व। ये दोनों वाल्व क्या करती है, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में क्या करती है, तो ब्लड को पास ऑन करती है, वेदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो सिंस एट्रिया हैज टू पास द ब्लड फ्रॉम विद इन द हार्ट, इट हैज टू सर्कुलेट ब्लड विद इन द हार्ट, इसीलिए इनकी वॉल क्या नहीं होती है, थिकेंड नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सर्कुलेशन कैसे होता है। Now let's start with the circulation. अभी हमने क्या देखा है कि राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर, इस साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रिया का पाइप वेना कावा, लेफ्ट एट्रिया का पाइप पल्मोनरी वेन, लेफ्ट वेंट्रिकल का पाइप एयोटा, राइट वेंट्रिकल का पाइप पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पूरे पाइप्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है। हार्ट का क्रॉस सेक्शन अगर है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हार्ट। इसमें हम लोगों को देखना, ये जो है ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। ये अपने पाइप्स हो गए, सॉरी कंपार्टमेंट्स हो गए। अब पाइप्स आता है वेना कावा, ये देखो ये वेना कावा है, ये यहां से स्टार्ट होता है, पीछे से आ रहा है, दिस इज आयोटा। This particular passage is said to be as this particular passage, okay, pulmonary vein. This coming from here, that is pulmonary artery. ये हो गया हमारे pipes within this cross section, ठीक है। ये जो है ये ग्रीन कलर से जो अटैच है, तो दीज आर द वाल्व्स। ये क्या होते हैं, ओपन क्लोज होते रहते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है वो स्ट्रेच होते रहता है, ठीक है। और यही ओपन क्लोज होने के वजह से ही ब्लड क्या होता है, एट्रिया टू वेंट्रिकल ट्रांसफर होता है। एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल जो होती है वो थिन होती है, और ये सेपरेट की जाती है बाय अ वॉल दैट इज सेड टू बी अ सेप्टम वॉल। तो दिस इज द सेप्टम वॉल, ठीक है, एंड दीज आर द एट्रिया। नाउ लेट्स सी हाउ द सर्कुलेशन अकर्स। ऑलवेज रिमेंबर कि एट्रिया विल रिसीव ब्लड, यानी ब्लड रिसीविंग हमेशा कहाँ होता है, एट्रिया में होता है, और वेंट्रिकल्स में हमेशा ब्लड फेंका जाएगा। तो वेंट्रिकल्स ऑलवेज थ्रो ब्लड आउटसाइड, ठीक है। जब भी ब्लड कोई भी पार्ट रिसीव करता है, कोई भी पार्ट ब्लड रिसीव करता है, उस वक्त वो रिलैक्स होता है जब रिसीव करेगा, और जब थ्रो आउट करेगा
तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो चाहे वो एट्रिया रहे चाहे वो वेंट्रिकल्स रहे, एवरी टाइम वेन एवर वी आर रिसीविंग समथिंग व्हाट वी नीड इज वी नीड टू रिलैक्स दैट पर्टिकुलर पोर्शन। तो जैसे क्रश्ड बॉटल है, तो क्रश्ड बॉटल में अगर हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो क्रश बॉटल क्या होगी, तो अपने रेगुलर शेप में आएगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन से रिलैक्स हो रही है। वाई? बिकॉज इट हैज टू रिसीव द वाटर। एंड इन द सेम टाइम जब हमने वो पूरा का पूरा बॉटल भर दिया है, तो अगर हम लोगों को वाटर को बाहर फेंकना है, उसको मूव ना करते हुए, ना उठाते हुए, तो वी विल क्रश दैट पर्टिकुलर बॉटल, तो विल प्रेशराइज द वॉल। तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस थ्रू विच ब्लड, दैट इज वाटर, इज रिलीज आउट ऑफ द बॉटल। तो ये याद रखना, एट्रिया हमेशा रिसीव करती है बाहर से ब्लड, वेंट्रिकल हमेशा बाहर ब्लड फ्लो करेगा outside the heart, ठीक है। एट्रिया whenever the part, any part, whether it is right or left ventricle or right or left atria, it will, the part which receives the blood at that time it will relax, and when it throw out the blood out of that particular part is at that time it will contract, ठीक है। तो अब डिटेल में देखते हैं साइकिल। वेना कावा ये दो पार्ट में, दो यानी एक्चुअली एक ही पाइप होता है बट दो एंड से आता है, एक अपर बॉडी से और एक डाउनवर्ड बॉडी से। सो वेना कावा विच इज कमिंग फ्रॉम द डाउन साइड ऑफ योर बॉडी इज सेड टू बी एज, इट कम्स फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, and vena cava is the largest vein of our body. It is the largest vein of our body. And the body, जब वो blood लेके आ रही है, तो this blood will always be deoxy blood and it will come from the downward side. एक तो जो downward side of the body से blood लेके आ रही है, that particular set is said to be as inferior vena cava. That vena cava is said to be as inferior vena cava. और जो हार्ट के ऊपर के बॉडी पार्ट से लेके आ रही है ब्लड, दैट पर्टिकुलर वेना कावा इज सेड टू बी एज सुपीरियर वेना कावा। बोथ ऑफ दिस, ठीक है, बोथ ऑफ दी पाइप्स क्या करेंगे, कहीं तो भी एक जगह कॉमन इसमें मीट करेंगे एंड इट विल ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू विच पार्ट, दैट पार्ट इज सेड टू बी एज राइट एट्रिया। क्लियर? तो राइट एट्रिया अगर ले रहा है ब्लड, तो व्हाट इट विल डू, इट विल रिलैक्स। एट द सेम टाइम पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन कहां से आ रही है, तो दिस इज पल्मनरी वेन, और पल्मनरी वेन कहां से आती है, तो लंग्स से आती है। तो लंग्स से पल्मनरी वेन, तो एक साइड हमारे, अगर ये लंग्स है हमारे, ठीक है, तो एक पाइप विल बी कनेक्टेड टू द लेफ्ट लंग, अनदर विल गो एंड कनेक्ट टू द राइट लंग। सो यहां से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, एंटर होगा। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, तो फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट लंग। तो देखो यहां भी दो बाइफरकेशन है, एक सिंगल पाइप है जो आगे बाइफरकेट हो गया, तो एक इस साइड जाएगा और एक उस साइड जाएगा, ठीक है। तो इट विल ब्रिंग विच ब्लड, यहां डीऑक्सी ब्लड है तो यहां कौन सा आएगा, तो ऑक्सी ब्लड विल कम वेयर थ्रू अ पल्मनरी आर्टरी टू लेफ्ट एट्रिया, यहां से आ गया ब्लड। अब अगेन एट्रिया में ब्लड है तो व्हाट इट विल डू, इट विल रिलैक्स। अब नेक्स्ट थिंग इज, जब ये कंप्लीटली फिल हो जाते हैं रिस्पेक्टिव एट्रिया, what they will do is they will start contracting। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जो इन पाइप्स की वैल्व्स होती है, ठीक है, जैसे वेना कावा और पल्मनरी वेन की, वो अपने आप क्लोज हो जाती है, और ये एट्रिया में जो ब्लड है वो क्या होता है, पुश करता है ये पर्टिकुलर वैल्व। तो यहाँ कौन सी वैल्व थी, तो ट्राइकस्पिड वैल्व। तो ट्राइकस्पिड वैल्व ओपन होती है और ब्लड आता है राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल। तो इस टाइम एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है और वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए, और लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, एंड एट दिस टाइम लेफ्ट एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल विल रिलैक्स। ठीक है, अब रिलैक्स हो रहे हैं यानी पूरा का पूरा ब्लड यहां से यहां आ रहा है। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ये पूरा जब फिल हो जाता है तो वेंट्रिकल क्या करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल विल गो हियर इनटू अ पाइप दैट इज सेड टू बी एज अयोटा। तो देखो यहां से वो कहा जा रहा है, अयोटा, और अयोटा से
towards the body part. यहाँ से aorta is towards the body part. Aorta is said to be as largest artery of our body. ठीक है, तो ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, तो टू बॉडी पार्ट चला गया. ठीक है, अब नेक्स्ट होता है यहां से जो ब्लड आ रहा है विच इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट विल गो फॉर ऑक्सीजनेशन टूवर्ड्स द लंग्स. सो पाइप विच कनेक्ट्स हार्ट टू दैट ऑफ अ लंग इज सेड टू बी एज पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, तो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी. तो ये पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा, ब्लड आ जाएगा. तो देखो यहाँ ब्लड चला जाएगा, यहाँ से ब्लड लेफ्ट साइड जाएगा एंड इट विल गो टू द राइट साइड. तो वन पार्ट गोज टू द राइट साइड ऑफ योर लंग्स एंड अनदर पार्ट गोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर लंग. तो ये वहां जाके क्या करेगा, तो इट विल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई, दैट इज थ्रू द डिफ्यूजन, एंड दिस ब्लड विल अगेन कन्वर्ट इटसेल्फ टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल अगेन कम इनटू हार्ट बाय अ vein, that is pulmonary vein from the lungs, where it will the blood will be poured in left atria and from here it will go to the respective ventricle. यहाँ भी क्या है जाएगा, यहाँ से जो ब्लड अयोटा में गया है, अयोटा से कहा जाएगा बॉडी पार्ट में जाएगा. बॉडी पार्ट में जाने के बाद वहां क्या होगा, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड में से ऑक्सीजन विल गेट ट्रांसफर्ड और डिफ्यूज टू द सेल्स और द बॉडी पार्ट्स, and carbon dioxide from the body part will get into the blood. So this particular blood which was oxygenated is now deoxygenated blood. So this deoxygenated blood is brought back to the heart by the vena cavas. ठीक है, तो वेना कावास will pour that particular blood in respective atria and then it goes back to the ventricle. और ये क्या आ जाएगा फिर से, तो ऑक्सीजनेशन के लिए. तो ऐसा ये कंप्लीट साइकिल इज व्हाट अ सिंगल हार्ट साइकिल इज. ठीक है, इस वक्त हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं. जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इनका रिलैक्सेशन होगा, जब इनका रिलैक्सेशन होगा तो इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा. ठीक है, तो इस वे में क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन. तो ये जब रिलैक्स करते हैं तब इनमें ब्लड आता है, उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड यहां से बाहर जाता है. फिर क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड यहां से यहां आता है. ठीक है, समझ में आया. तो इस वे में, और ये इस वक्त क्या करते हैं, तो ये रिलैक्स करते हैं. तो ये जो मूवमेंट होती है ब्लड की, इसके वजह से ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से लबडब ये साउंड क्या आता है, सुनाई आता है. तो दैट इज व्हाट द हार्ट बीट इज. ठीक है, तो अब हम लोग एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं और पूरा सर्कुलेशन एक बार देख लेते हैं फिर से. सो जो ब्लड फ्लो विद इन द हार्ट होता है, that complete cycle which we have studied is said to be as one cardiac cycle. एक कार्डियक साइकिल को होने के लिए बस 0.8 सेकेंड काफी है, उसमें एक हार्ट साइकिल हो जाती है. तो वो कैसी होती है, तो लेट स्टडी. दैट इज वेना कावा. कहां से आएगा, तो वेना कावा यहां से और यहां से लेके आएगा विच ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एट्रिया. एट द सेम टाइम पल्मोनरी वेन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम लंग्स will bring what, oxygenated blood to LA, and at this particular moment atria, both the atria will relax. ठीक है, जब ये एट्रिया रिलैक्स हो रहे हैं इस वक्त वेंट्रिकल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. हमेशा याद रखना, जब एट्रिया रिलैक्स तो उस वक्त वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स. तो एट्रिया अगर यहाँ रिलैक्स हो गई तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. Atria completely filled हो गए, respective atria will open particular valve. Right side of the valve is said to be as tricuspid valve. तो tricuspid valve open हो जाएगी एंड यहाँ कौन सी होगी, तो bicuspid valve will open. तो यहाँ से ब्लड कहाँ आ जाएगा, तो रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में आ गया. अब रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में ब्लड डालना है तो इस वक्त एट्रिया विल, बोथ द एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट and blood enters RV and LV. At this moment particular जो भी रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो गए. और जब ये रिलैक्स हो रहे हैं तो एट्रिया क्या होगी, एट्रिया हो गए कॉन्ट्रैक्ट. तो देखो जब इनका रिलैक्सेशन है तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है. अब ये पूरा ब्लड फिल हो गया तो ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा
कहाँ, तो रिस्पेक्टिव पार्ट में। तो यहां से डीऑक्सी ब्लड कहाँ जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से जाता है हमारे लंग्स। तो देखो यहां से ब्लड गया यहाँ, और एक गया इस साइड और एक गया इस साइड, तो कहाँ जा रहा है, ये लंग्स के तरफ जा रहा है। और दूसरा तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज अयोटा में एंटर हुआ। तो यहां से देखो ये गया अयोटा, तो कहाँ जा रहा है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। तो this will carry the distribution of oxygenated blood to each and every body part, and this deoxygenated blood is going through to the lungs for oxygenation. जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है, हार्ट में आता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो डीऑक्सीडाइज हो जाता है बॉडी पार्ट में, तो वो डीऑक्सी ब्लड जो बॉडी पार्ट में हुआ है वही कहाँ आ रहा है, तो वापस से हमारे हार्ट में आ रहा है थ्रू वेना कावा। तो सिंस सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंटर्स हार्ट ट्वाइस, सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंटर्स हार्ट ट्वाइस, इसीलिए ह्यूमंस के ब्लड सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। What it is said to be as डबल सर्कुलेशन। देखो यहाँ एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बॉडी पार्ट में गया, बॉडी पार्ट में जाने के बाद क्या हो गया, यानी हार्ट से बॉडी पार्ट में गया, बॉडी पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर हुआ अगेन थ्रू व्हाट, वेना कावा, फिर वो कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स में, और फिर लंग्स से कहाँ आया, तो पल्मोनरी वेन में। इसीलिए उसको कौन सा टाइप ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं, तो डबल सर्कुलेशन कहते हैं, जिसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, एक टर्म, दो टर्म याद रखना है। जब हम लोग कहते हैं कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, ठीक है, तो दैट इज सेड टू बी एज डायस्टोल, एंड व्हेन वी से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो दैट इज सेड टू बी एज सिस्टोल। ठीक है, तो जब प्रेशर लेते हैं हम लोग तो दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, और वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं तो दैट इज सेड टू बी एज डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग आती है कि ये जो हमारा पूरा जो ब्लड जाता है, ये ब्लड अंडर प्रेशर मूव होता है थ्रू अयोटा। ठीक है, तो अयोटा में भी क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है हमारे हार्ट का, इसीलिए हमारे जो अयोटा और फिर आर्टरीज में सिंस ब्लड अंडर प्रेशर जाता है तो हमें वाइब्रेशन फील होते हैं। तो ये वाइब्रेशन इज कनेक्टेड टू द हार्ट बीट। तो इन अ मिनट हम लोग कितने बार बीट करते हैं, तो वी बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। ठीक है, तो ये जो रहता है ये किसका रहता है, तो रिदम रहता है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है किसका, तो एट्रिया एंड वेंट्रिकल का। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एट्रिया इज व्हाट इज सेड टू बी एज वन हार्ट बीट। और ऐसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो कितने बार होते हैं एक मिनट में, तो 72 टाइम्स होते हैं। यही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है ये हमारे एट्रियम तक के आर्टरीज तक के भी क्या होता है, फील होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आर्टरीज के जो वाइब्रेशन फील होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पल्स, या और जितने मिनट वो पल्स हम लोगों को फील होता है हमारे आर्टरीज में उसको हम लोग कहते हैं पल्स रेट। तो पल्स रेट इज इक्वल टू दैट ऑफ योर हार्ट रेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। नाउ लेट्स सी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ये जो होता है वो प्रेशर होता है ब्लड का। हम लोगों ने सीखा है कि आर्टरीज विल हैव मोर अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ अ ब्लड ऑन इट्स वॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेन्स। व्हाई? बिकॉज इट कनेक्ट्स हार्ट डायरेक्टली टू द हार्ट, या इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हमेशा जो भी ब्लड प्रेशर हम लोग लेते हैं वो ब्लड प्रेशर हम लोग विथ रेफरेंस टू दैट ऑफ द आर्टरी ही लेते हैं, क्योंकि हमेशा आर्टरी का ही प्रेशर ज्यादा रहता है। और जो हम लोग पल्स रेट भी देखते हैं वो भी हम लोग आर्टरी का ही देखते हैं। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर ये क्या होता है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। क्या है वो?
प्रेशर एक्सर्टेड किसने, तो ब्लड ने, किस पे, आर्टरीज पे, वेन्स पे कभी भी नहीं लगे, ठीक है, क्योंकि वेन्स में अंडर प्रेशर ब्लड मूव ही नहीं होता है, सो दैट इज सेड टू बी एज ब्लड प्रेशर। अभी मैंने बताया कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल, एंड जब हम लोग ब्लड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन देखते हैं तब उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोल, ठीक है। तो जब हम लोग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, और जब हम लोग डायस्टोल के वक्त लेते हैं यानी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के वक्त लेते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। तो अब सोचो बेटा कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, ऑफ कोर्स ब्लड विल गो आउट ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो आयोटा से बाहर जाएगा वो बॉडी पार्ट के लिए, और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से कहा जाएगा, तो लंग्स के तरफ। तो इस वक्त विथ रेफरेंस टू दैट ऑफ आर्टरी, हम लोग वेन्स का नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ आर्टरी का ही पढ़ रहे हैं, विथ रेफरेंस टू आर्टरी प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रेशर अगर ज्यादा होगा किसमें, तो हमारे आर्टरी में, तो उसकी वैल्यू, इस सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, और वो वैल्यू होती है 120 mmHg, मिलीमीटर ऑफ Hg, दैट इज मर्क्यूरी, ठीक है। जब हम लोग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के वक्त हार्ट में ही ब्लड रहता है, आउटसाइड द हार्ट नहीं आता है। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के वक्त एट्रिया पोर करती है ब्लड विद रिस्पेक्टिव दैट ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में वो क्या करती है, ब्लड को डालती है। तो इस वक्त जब हम लोग प्रेशर लेंगे आर्टरीज में, तो उस वक्त प्रेशर क्या रहेगा ऑन द आर्टरीज, कम रहेगा, तो डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू होती है 80 mmHg, ठीक है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो इससे ज्यादा वैल्यू होती है, और अगर लो ब्लड प्रेशर है तो इससे कम वैल्यू होती है। दोनों चीज क्या होती है, प्रॉपर नहीं है बॉडी के लिए। हाई ब्लड प्रेशर में, ज्यादा प्रेशर में अगर ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज के, तो आर्टरी की वॉल क्या कर सकती है, रप्चर हो सकती है, यानी हेमरेजेस हो सकते हैं, हेमरॉइड्स हो सकते हैं। और जब ब्लड क्या है, लो है, लो ब्लड प्रेशर है, यानी क्या, ब्लड इज नॉट इनफ टू टेक the transporting material, to take those material which are dissolved in the plasma to each and every cell, तो इसके वजह से भी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। Instrument which is used to measure the blood pressure is said to be a sphygmomanometer, और वो स्पिग्मोमैनोमीटर में एक्चुअली जो रीडिंग दिखाता है तो वो क्या रहता है, तो मर्क्यूरी रहता है, इसलिए मिलीमीटर ऑफ Hg के रेफरेंस में हम लोग क्या लेते हैं, तो उसका प्रेशर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ब्लड प्रेशर। ये हमेशा याद रखना कि सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा रहेगा क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, और डायस्टोलिक प्रेशर कम रहेगा क्योंकि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है। अब पढ़ते हैं डिटेल में डबल सर्कुलेशन, अच्छे से करना है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि सेम वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड एंटर्स द हार्ट ट्वाइस, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ ब्लड एंटर्स द हार्ट ट्वाइस इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हम लोगों को बर्ड्स में दिखता है एंड मैमल्स में भी दिखता है। इनमें क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि हार्ट जो है वो कैसा है, 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। अब ये सिस्टम जो होती है 4 चैम्बर्ड हार्ट की, जब हार्ट अच्छे से बन जाता है तो उसको हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। लास्ट ईयर में हम लोगों ने देखा था 2 टाइप की सिस्टम होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होती है बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी थ्रू दी ब्लड वेसल्स, इसीलिए ब्लड कोई ऑर्गन को फ्लड नहीं करता है। बट यही अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा तो उनमें दे डोंट हैव डिजाइंड पैटर्न दैट इज योर हार्ट एंड एज वेल एज ब्लड वेसल्स। तो जो भी ब्लड कंटेंट होता है वो क्या करता है, तो पूरे बॉडी ऑर्गन्स को फ्लड करते रहता है, तो दैट इज सेड टू बी एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 4 चेम्बर हार्ट है, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेम्बर ऑफ हार्ट में क्या है, तो पार्टीशन है प्रॉपर, जिसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है। हम लोग हो गए, बर्ड्स हो गए, यानी मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड। व्हाई, ठीक है, लिसन टू इट प्रॉपरली।
व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेंटेन आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अगर हम लोगों ने मेंटेन नहीं किया तो हमारे सारे सेल्यूलर एक्टिविटीज स्टॉप हो जाते हैं, रादर कम हो जाएंगे, और फिर एक टाइम आ जाएगा कि वो स्टॉप हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं होम्योस्टैसिस। दैट इज होम्योस्टैसिस, यानी स्टैटिक करते हैं हमारे बॉडी को टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर वी मेंटेन इट। तो डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट का चेंज अपना इंटरनल चेंजेस भी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो होम्योस्टैसिस प्रॉपर होने के लिए हम लोग बिल्कुल ही इंटरमिक्सिंग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ये फर्स्ट रीजन हो गया, यानी इसमें क्या हो रहा है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, बॉडी इज मेंटेन्ड। नेक्स्ट होता है, दूसरा रीजन ये होता है कि अगर हमारे इसमें इंटरमिक्सिंग हो जाए तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो प्रॉपर नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो तुम ही सोचो, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा क्या, नहीं होगा। एटीपी जनरेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो इन सब में प्रॉब्लम आते जाएगा। ठीक है, तो ये आता है रीजन, अच्छे से करना, पूछा जाता है कि इंटरमिक्सिंग बर्ड्स एंड मैमल्स क्यों टॉलरेट नहीं करते हैं। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है बॉडी पार्ट से, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय वेना कावा। ये कहां से कहां जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा और यहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। यहीं से ब्लड आता है पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट एट्रिया, और यहीं से कहां जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल टू आयोटा टू बॉडी पार्ट। तो जब साइकिल होता है हार्ट, बॉडी पार्ट एंड हार्ट, तो आयोटा, बॉडी पार्ट एंड वेना कावा, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जब ब्लड फ्लो हो रहा है लंग्स, फिर हार्ट टू अगेन लंग्स, तो लंग्स, पल्मोनरी वेन, हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, तो इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेशन में 2 बारी ब्लड हार्ट में आ रहा है, इसीलिए, और इंटरमिक्सिंग भी नहीं हो रहा है, इसीलिए इस टाइप ऑफ सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो जब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये और ये एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। टेक्स्ट बुक में डिफरेंट डायग्राम दिया हुआ है, वो भी तुम ड्रॉ कर सकते हो, ये इजीएस्ट है इसलिए मैंने ये बताया है। डबल सर्कुलेशन के अलावा और भी सर्कुलेशन होते हैं, जैसे सिंगल सर्कुलेशन हो गया। सिंगल सर्कुलेशन जो होता है वो हमारा फिशेस में होता है। फिशेस का हार्ट जो होता है वो 2 चेम्बर्ड होता है, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। तो फिशेस में क्या नहीं होता, सेपरेशन नहीं है, 4 चेम्बर्स नहीं है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का क्या होगा, सेपरेशन ही नहीं होगा। इसीलिए फिशेस कौन सा दिखाती है, तो सिंगल सर्कुलेशन दिखाती है। इनमें क्या है, तो जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है वो क्या करते हैं, तो इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो भेजते हैं गिल्स के पास, और हमने रेस्पिरेशन में सीखा है कि गिल्स के फिलामेंट ऑक्सीजन रिच होते हैं। तो ये रिच ऑक्सीजन कहाँ जाता है, तो ब्लड में जाएगा, और वही ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन डिलीवर होगा, ब्लड बनेगा डीऑक्सीजनेटेड, और अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आएगा। यानी हार्ट में उनके हमेशा डीऑक्सी ब्लड ही होता है। ऑक्सीजनेशन गिल्स में होता है, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड बॉडी पार्ट में जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हार्ट में आता है। ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन। फिर आते हैं हमारे एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन पिछले साल पढ़ा था, जिस क्रोकोडाइल, उनमें क्या होता है 4 चेम्बर, पर बाकी इसमें क्या होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो 3 चेम्बर्ड हार्ट जो होता है इनमें क्या होते हैं, तो 2 एट्रिया होते हैं और एक ही वेंट्रिकल होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, बट जब वो वेंट्रिकल में पोर किया जाता है तब वो क्या होता है, तो इंटरमिक्स होता है। तो बॉडी पार्ट के पास इंटरमिक्स ब्लड ही जाता है। तो दिस काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज सेड टू बी एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्लड में मिक्सिंग है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट छोटे ऑर्गेनिज्म से तो हमसे तो कम ही है, बट इवन दो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी प्रॉपरली नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एस्टिवेट और हाइबरनेट करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था, और इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं
कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेशन, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन। कल से हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। डबल सर्कुलेशन अच्छे से पढ़ना, और ये जो अभी मैंने बताया इंटरमिक्सिंग कैसे होता है वो भी अच्छे से पढ़ना।